Hello students, so today a new chapter of mathematics is gonna be discussed, and frankly this is one of the important chapter for your mathematics because the chapter that we are going to discuss today has to be implemented in class 8, class 9 and also in class 10. And when you move on to class 11, 12, this same algebra or the same chapter is going to be discussed or going to be implemented. You will not get directly such questions, but this concept is going to be implemented for your classes 11 and 12. That means this is the base that you are going to build in class 8 and it will be used in 9, 10, 11 and so on. So the name of the chapter is algebra. Okay. Now, what is algebra all about? Algebra means expressions or terms. Algebra means expressions or terms where a certain value is unknown. For example, suppose 3x. This is an algebraic term. Why, sir? Because I have this x around here. This is an unknown value. This you have to find. This you have to calculate. So that's why x is being given. So algebra is a term or an expression in mathematics where we are having unknown values. These unknown values are known as variables. Variables. And the fixed numbers that you are getting in front of it, they are known as constants. Okay, these are known as variables and these are known as constants. Correct? As it is all about variables in algebra, so they are given importance. Constants are not given importance. The importance are given to variables. So whatever we will do, whatever calculation we will do, whatever choices we will apply for, all will be based on the type of variables, not on the type of constants. ठीक है? For example, there is a term called coefficient. Coefficient. What is the meaning of coefficient? Coefficient means term excluding the given variable. Given variable টাকে যদি বাদ দিয়ে দিই excluding, তো যা বেঁচে থাকবে that is my coefficient. For example, I am suppose this one 3x. You have been asked what is the coefficient of x. তো আমি x টা এখানে বাদ দিয়ে দাও তো কি বেঁচে গেল? The answer is 3. Correct? Suppose for this 3x square plus bx. 3x square plus bx. You have been asked coefficient of x square and coefficient of x cube. क्या होगा इन तीनों का आंसर? Coefficient of x মানে এই টার্মটা থেকে x के যদি बात भी মানে এটা আলাদা টার্ম এটা আলাদা টার্ম these two are separate terms क्योंकि बीच में यहाँ प्लस है. ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है तो bx में से कोएफिशिएंट निकालना है x का कोएफिशिएंट निकालना है. सो व्हाट आई विल डू आई विल एक्सक्लूड द x तो क्या बचेगा b. सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इस टर्म में से x स्क्वायर बात दे दो क्या बचेगा 3. सो 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब सर यहां तो x क्यूब है ही नहीं. करेक्ट x क्यूब नहीं है मतलब इसका कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है. The coefficient of x cube is 0. Correct. So this is how coefficient of algebraic terms are written. So अभी तक क्या हम लोग वर्ड पढ़े? So the terms discussed are what is a constant, what is a variable and what is a coefficient. These three terms are given. Now अब ये term की बात आती है. यहां जो प्लस डाल दिया हम लोग, this is the first term, this is the second term. प्रत्येकটা term is called a nomial. Nomial. So therefore, if an algebraic
equation or an algebraic expression contains only one term, that is called monomial. Monomial. Only one algebraic term. For example, 3x. একটাই খালি আছে. But if I move for binomial, 3x plus 7, দুটো টার্ম আছে because there is a plus in between. There are two terms, binomial. Trinomial, 3x square minus 5x plus 9. Three terms are there. This is the first term, this is the second term, this is the third term. Trinomial. Then we will have tetranomial, pentanomial, hexanomial. जितना सारा term होगा नोमियल बढ़ते जाएगा. So broadly it is classified that if the algebraic terms contain one term, it is monomial. और जब बाकी जितना सारा है more than one term, that is called polynomial. Monomial and polynomial. ठीक है? So if the algebraic term if the algebraic expression contains one term, it is called monomial. More than one term, polynomial. দুটো থাকলে binomial, then trinomial, চারটে থাকলে tetranomial, and will go on. The x or the unknown part is known as variable, the known part is known as constant, and the algebraic term or the algebraic part from which the given variable excluded, that part is known as coefficient. ठीक? एबार what to do with this algebra, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का सम्स आएंगे, that is a big question. Let us डीएवी के बुक में सिर्फ ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है. बट लेट मी वेरी क्लियर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये नहीं करेंगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बाद में करना पड़ेगा. ये डीएवी सीएमसी का पता नहीं कौन सा बुद्धि है कि दे हैव नॉट इंक्लूडेड दिस इन योर सिलेबस, बट दिस हैज टू बी डन बिफोर वी आर मूविंग ऑन टू दिस. तो पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता देते हैं. व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस operations on algebraic term. Operations on algebraic terms. That is, you have to add two algebraic terms, you have to subtract two algebraic terms, you have to multiply, and finally you have to divide. So these are the four things we have to learn in algebraic expressions. अब सर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का नियम बड़ा आसान है. ठीक है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इजी व्हेन यू गो फॉर algebraic expression. व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या खोजना पड़ता है? फर्स्ट यू हैव टू सर्च फॉर लाइक टर्म्स. ठीक है, देन add or subtract like terms only. There are two steps. पहले like terms group, grouping of like terms grouping, this is the first step. And then add or subtract of like terms only. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x square plus 8x minus 5. Okay, you have to add plus 9x plus 7y. इसको तुमको ऐड करना है. अब देखो, the first term is 3x square, बीच में प्लस दिया हुआ है. यहां इसका वेरिएबल पार्ट क्या है? वेरिएबल पार्ट इज एक्स स्क्वायर. अच्छा, लाइक टर्म्स बोलना है. लाइक टर्म्स मींस द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल. लाइक टर्म मींस द टर्म हैविंग सेम वेरिएबल. इसमें क्या है? 3x स्क्वायर, इसका वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर. इसमें कहीं पे एक्स स्क्वायर है? नहीं है सर. सो 3x स्क्वायर अकेले लिखेंगे, किसी के साथ ये ग्रुप नहीं हुआ. फिर क्या है? 8x, इसमें कहीं पे 8x है, इसमें कहीं पे x है. हां सर 9x है. So I got 8x plus 9x. फिर क्या है? -5.
यहां -5 मीन्स देयर इज नो वेरिएबल, यहां ऐसा कोई टर्म इसमें नो वेरिएबल नहीं सर, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, तो -5 अकेले रह गया। और लास्ट में वहां क्या है, +7y, 7y का भी कोई ग्रुप नहीं है, तो यहां ग्रुप मिला सिर्फ इसका। सो व्हाट आई एम गेटिंग 3x²। अच्छा, एड सब्ट्रैक्ट coefficients of like terms only. You have to add or subtract the coefficient of like terms. मतलब कोएफिशिएंट का मतलब क्या बोले कि वो वेरिएबल पार्ट को छोड़ के जो बचा, तो यहां वेरिएबल पार्ट है x, इसको छोड़ के बचा 8, यहां वेरिएबल पार्ट है x, छोड़ के बचा 9, सो वी विल एड 8 + 9, 8 + 9 कत হয় 17, सो आई विल राइट हियर 17x - 5 + 7y, दिस इज द सम ऑफ बोथ। सिर्फ वही टर्म ऐड होगा। सर यहां देखो, यहां x² है, यहां x है, दोनों का x है, लेकिन यहां स्क्वायर है, यहां सिंगल x है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों सेम वेरिएबल नहीं है। सेम मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एडिशन इज डन। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लो। Okay, this is the question. 5x + 7y + 9z - 2x + y - 3z। अब क्या करेंगे सर, यहां माइनस दिया हुआ है, तो पहले इसका ब्रैकेट हटाओ, क्या मिलेगा, आई एम गेटिंग दिस वन, 5x + 7y + 9z - 2x - y + 3z। सर प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट। नाउ यू हैव टू ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब यहां देखो x है, इसका लाइक टर्म यहां x है, सो यू विल राइट हियर 5x - 2x। फिर है y, दिस इज y, दिस इज y, यू विल राइट हियर +7y - y। फिर क्या है, z एंड z, यू विल राइट +9z + 3z। okay, so all the terms have been written. Now add or subtract the coefficient, सिर्फ coefficient को add या subtract करो। चलो 5 - 2, I will get here 3x, correct, plus 7y - y is 6y, plus 9z + 3z is 12z। हो गया आंसर। This is how my addition or subtraction of algebraic expressions is done. Then we move on to multiplication of algebraic expressions. ठीक है सर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ algebraic expressions थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों एक साथ कर देते हैं, ठीक है, दोनों के एक ही नियम है। यहां पे सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड होता था, यहां पे लाइक टर्म्स की जरूरी नहीं है। यहां पे क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड को एफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स सेपरेटली एंड वेरिएबल्स सेपरेटली। मतलब कोएफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है, दोनों अलग अलग सेपरेटली। कैसे, सपोज एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया गया, मल्टीप्लाई है इस प्रकार
3x² plus 8x minus 5. Okay, this has to be multiplied with 7xy. ओके, हाँ ठीक है, विथ 7xy. कैसे होगा ये? सो यू विल मल्टीप्लाई दिस 7xy विथ ईच एंड एवरी टर्म. प्रत्येक के साथ में, इसके साथ भी होगा 7xy, इसके साथ भी होगा 7xy, इसके साथ भी होगा 7xy. व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 3x² into 7xy plus 8x into 7xy minus 5 into 7xy. सेपरेटली, ये भी सेपरेट, ये मतलब इंडिविजुअली तीनों के साथ डिवाइड कर दिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब क्या करेंगे? द व्हाट वाज द रूल? दैट मल्टीप्लाई और डिवाइड द कोएफिशिएंट सेपरेटली एंड द वेरिएबल सेपरेटली. तो यहां सिर्फ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो. 3 into 7 हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 21. ठीक है. वेरिएबल पार्ट यहां है x², यहां है x. x माने कुछ नहीं, मतलब 1. x² एंड x1 यू आर गेटिंग x² into x⁴1. यहां पे एक्सपोनेंट का रूल लगाओ. इफ द बेसेस आर सेम देन द पावर्स विल बी एडेड. तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? x⁴3. सो आई विल गेट हियर x⁴3. यहां तो कोई y नहीं है, यहां अकेला y है, तो देयर विल आई राइट हियर y. Then I will move here plus. Okay. Then the coefficient 8 into 7, how much it is? The 8 into 7 it will be 56. Then here is x, here is x, means x⁴1 into x⁴1. It will be x⁴2 into y. Y is independent, किसी के साथ रिलेटेड नहीं है. Minus 5 into 7 is 35xy. हो गया. This is how the multiplication of algebraic terms are done. ठीक है? Means you have to separately give weightage to each and every term. You have to distribute the multiplicative term with all the algebraic terms or expression that you are getting. चलो, one more example. Question. You have to multiply this is the term. You have to multiply 5x plus 3y into 3x minus 2y. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम रूल. You have to multiply this 5x with both and this 3y with both. जैसे यहां क्या किए? This 7x multiplied with all the terms. Here also this 5x will be multiplied with all the terms and this 3y will be multiplied with all the terms. ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? I will write here 5x bracket 3x minus 2y. 5x के साथ पूरा लिख दिया. Then I had plus in between, so I will write plus 3y bracket 3x minus 2y. Okay, अब फिर से सर फिर वही टर्म आ गया. Now I have to multiply this 5x with this one and with this one. Then I have to multiply 3y with this one and again with this one. So what I am getting? 5x into 3x. Multiply the coefficients. 5 into 3 कत हो जाए? 15. x into x it will be x square. बीच में क्या है? माइनस. I will write here minus. 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10. Here is x, here is y. I will get here xy. 3 into 3 9. y into x xy minus, because here minus is given, 3 to the 6, y into y square. Okay, but this is not the answer. क्यों सर? आंसर क्यों नहीं हुआ? Because see like terms are there, xy दो like term आ गया. अब क्या करें सर जब like term आ गया? तो what I told, यहां बीच में कौन सा साइन है? प्लस. मीन्स यू हैव टू ऐड देम बोथ. ये तो x स्क्वायर है, कहीं x स्क्वायर दिख रहा है? नो, देयर इज ओनली अ सिंगल x स्क्वायर हियर.
So I will write here 15x square as it is. You don't have to change it. But xy, the similar terms are there. If in case of addition or subtraction, you have to only add or subtract the coefficients. Don't add or subtract the variable part. तो इसका कोएफिशिएंट कितना है -10, इसका कोएफिशिएंट कितना है 9. So I have got -10 plus 9. -10 plus 9 कितना हो जाएगा -1. So I will get a -1 xy and -6 y. This is my answer. So this is how my multiplication of algebraic terms are done. तो बोले सर अब डिवाइड कैसे करेंगे? डिवीजन इज नॉट सो सिंपल. फॉर डिवीजन आई नीड अ ब्रॉडर टॉपिक. ठीक है, कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. ओके, व्हाट आई हैव रिटन? आई हैव रिटन ए टॉपिक डिवीजन बाय मोनोमियल. Division by monomial. What is monomial? There will be a single term. Means I have to divide only a single term. Suppose this is the given question. 15x cube y square divided by 5xy. क्या होगा इसका आंसर? क्या बोले? क्या होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कि you have to divide or multiply the coefficient separately and you have to multiply and divide the variable separately. तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है 15, नीचे है 5. तो 15 और 5 को डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 3 हो गया. ऊपर कितना है? x क्यूब, नीचे है x. सो आई एम गेटिंग x क्यूब बाई x. फिर से इंडिसेस एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाओ. इफ द बेसेस आर सेम, if the bases are same, the powers are different and you are dividing, तो क्या हो जाएगा? The powers will be subtracted. तो 3 minus 1 it will be x square. Similarly y square and y, you will get y1 or y separately, you can directly write y. So this is how my division by monomial is done. Then I will get one more example. जैसे यहाँ तो सिर्फ एक टर्म था, लेकिन दो टर्म दिया तो suppose like this. 27x cube y minus 15x square y square by 3x y square. ये हमारा क्वेश्चन. चलो रुको, नहीं रुको. हाँ ठीक. दिस इज माई क्वेश्चन. अब कैसे सॉल्व करें इसको? फॉर दिस आई नीड टू सेपरेट बोथ ऑफ दिम. मीन्स आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 3xy विद दिस वन ऑल्सो एंड विद दिस वन ऑल्सो. मतलब ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो सेपरेटली आई विल राइट हियर लाइक दिस. 27x cube y divided by 3xy square minus 15x square y square by 3xy square. Correct? अब आंसर लिखो. The coefficients are 27 and 3. क्या हो जाएगा? 9. I have x cube, I have x. x cube by x. क्या हो जाएगा? Here will be x square. लेकिन सर यहां पे एक लफड़ा हो गया. ऊपर है y एंड नीचे है y स्क्वायर. मतलब नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है. सो आई कैन राइट हियर y टू द पावर -1 और आई कैन राइट हियर बाय y बिकॉज y to the power -1 is 1 by y. We have already studied this in exponent part. So this is the first term. Minus 15 by 3. 15 by 3 কত হয়? 5. Here is x square, here is x. Only a single x will remain. Here is y square, here is y square. Sir, both तो कट जाएगा, पूरा तो खत्म हो जाएगा. तो क्या बचेगा? I will get y to the power 0. Anything to the power 0 क्या होता है? 1. मतलब इसको लिखो ना लिखो, it doesn't matter. Because y to the power 0 is 1. इसको लिखो ना लिखो, it doesn't matter. ठीक है? So this is my answer. 9x square by y minus 5x. So this is how division is done, but this division is restricted to division of polynomials. This is also a polynomial. This is also a polynomial.
प्रॉब्लम कहां आएगा? द टफेस्ट पार्ट जो शुरू करने वाले हैं अभी, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्लास 8 में तो है ही, क्लास 9 में जाके दिमाग खराब करेगा, क्लास 9 में तो परेशानी कर देगा क्लास 10। क्या है? डिवीजन बाय पॉलिनोमियल means you have to divide a value by a polynomial. Difficult? Yes. कैसे? चलिए बताते हैं। Suppose I have to divide just okay, I have to divide x square minus 3x minus 10 divided by x plus 2। तो इसको डिवीजन करने का तरीका is just like the division that you have been taught in class KGN 1। कैसे डिवाइड करते थे भाई सर? like this। Yes, the same division method has to be applied for this one। क्या है? नीचे is x plus 2, so I will write x plus 2 here। What is the dividend? Dividend is x square minus 3x minus 10। This is the dividend। So how to divide? इसको डिवाइड करने का there is only one rule। There is only and only one rule, that is you have to equalize the first term of the dividend and first term of the divisor। हम बार बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। तो यहां डिवाइजर क्या है? x, डिविडेंड क्या है? फर्स्ट टर्म x स्क्वायर। मीन्स यू हैव टू इक्वलाइज, इक्वल करना है किसको? x को और x स्क्वायर को। So how can I change x into x square? By multiplying it with x। So I will multiply the term with x। मतलब ये पूरा टर्म, this पूरा term is multiplied with x। x plus 2 is completely multiplied with x। So what I will get? x into x, I will get here x square। हाँ सर इक्वल हो गया। 2 into x, I will get here 2x। ओके अब लिख तो लिए। डिवीजन में क्या करते सर? जो टर्म होता था उसको ऊपर वाले से माइनस करते थे। वी यूज टू सब्ट्रैक्ट इट। तो सब्ट्रैक्ट करो। आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस होल पार्ट फ्रॉम दिस। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है सर? साइन चेंज हो जाता है। मीन्स आई कैन राइट हियर नेगेटिव हियर, नेगेटिव हियर, मीन्स दिस साइन विल बी चेंज। ये कट जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। एक्स माइनस एक्स इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 0। ऊपर में क्या मिला? माइनस 3x, नीचे क्या मिला? माइनस 2x। माइनस 3x माइनस 2x, दे आर लाइक टर्म्स, x एंड x लाइक टर्म्स। सो अगर लाइक टर्म्स है और बीच में प्लस माइनस है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको करना है सर? कोएफिशिएंट को। तो माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 5x माइनस 10। अभी तक का आंसर नहीं आया सर, कुछ बचा हुआ है। अभी क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अगेन इक्वलाइज द डिविडेंड, सॉरी द डिवाइजर एंड द डिविडेंड। डिवाइजर इज x एंड डिविडेंड इज माइनस 5x। तो x को माइनस 5x में कैसे कन्वर्ट करें सर? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ माइनस 5। मीन्स दिस x प्लस 2 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस 5। ओके, क्या मिलेगा? x इंटू माइनस 5, आई विल गेट हियर माइनस 5x, प्लस 2 इंटू माइनस 5, आई विल गेट हियर माइनस 10। अगेन क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो माइनस में व्हाट यू आर डूइंग? अगर हम इसके सामने एक माइनस लगाएं तो व्हाट विल हैपन? माइनस माइनस दिस विल बी प्लस
एंड माइनस माइनस दिस विल अगेन बी प्लस, मतलब ये सब नहीं देखना है, ये नीचे वालों को देखना है, ठीक है। सो व्हाट यू आर गेटिंग, देखो तो ऊपर में -5x, नीचे में +5x, -5x + 5x कट गया, ऊपर में -10, नीचे में +10, -10 + 10 कट गया, मींस माय डिवीजन इज कंप्लीट। व्हाट आई हैव गॉट द क्वोशेंट, माय क्वोशेंट इज x - 5। दिस इज हाउ द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विद द पॉलिनोमियल इज डन, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, वाई, बिकॉज यहां रिमाइंडर 0 निकल गया और एक सीधा साधा क्वोशिएंट निकला। लेकिन अगर मान लो हम डिवाइड करते हैं बड़ा नंबर, तो मे भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर आ सकता है। तो सर कब तक हमको डिवाइड करना है ताकि पता चल जाए कि ये रिमाइंडर आ गया, अब इसके नीचे नहीं जा सकते। द रूल इज दैट कि इफ द डिग्री और द पावर, the degree or the power of the coefficient of the divisor is smaller or equal than the remainder। जैसे यहां पे देखो -5x आया, मतलब इसका x के ऊपर डिग्री क्या है 1, पावर इज 1, इस x के ऊपर पावर क्या है 1, मींस दे कैन बी डिवाइडेड। लेकिन अगर मान लो यहां रहता x² और यहां था x, तब डिवाइड हम नहीं कर पाए। करेक्ट, बताते हैं कैसे। 3x² + 2, this is my question। I have to, or 3x² plus 3x² minus 5x plus 2, ये भी बड़ा, ये बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं। चलो, सो आई हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद दिस पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। आई विल राइट हियर 3x² minus 5x plus 2, and this has to be divided with 9x to the power 4 plus 13x cube minus 10x plus 4. Okay, so what was the rule? The rule was to equalize the first part of the divisor and first part of the dividend. So I have here 3x² and यहां पे क्या है 9x to the power 4. So you have to convert 3x² to 9x to the power 4. क्या मल्टीप्लाई करोगे, I will multiply 3x²। कैसे सर, 3 into 3 9, x² into x², x4. So this is the term that I have to multiply, means I will write here the first term as 3x²। समझ में आया, अब लिखते चलो। दिस फुल टर्म हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 3x²। ये पूरा, सिर्फ पहले वाला नहीं, इक्वल करना है पहले वाले को, लेकिन मल्टीप्लाई करना है पूरे को, मींस दिस होल पार्ट, यहां से लेके यहां तक पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो इक्वलाइज, मल्टीप्लाई करो, 3x² into 3x², it will be 9x to the power 4. Then you have -5x plus 3x², here you will get here -15x³। सर कैसे -15 हो गया, पूछ ही सकते हैं। तो चलो लेट मी एक्सप्लेन। सर यहां क्या है, यहां है, इसको 13 या 12 कर दो, इट विल बी बेटर। 12 कर दो, कैलकुलेशन इजी हो। हाँ ठीक, तो 5 into 3 इट इज 15, और माइनस प्लस माइनस, फिर है +2 into 3x², आई विल गेट हियर 6x²। क्लियर है। अब क्या करते थे सर, साइन चेंज, क्योंकि माइनस करना है, तो इसके सामने क्या है पॉजिटिव, तो क्या साइन हो जाएगा नेगेटिव। व्हाट इज द साइन हियर, नेगेटिव, तो क्या साइन हो जाएगा पॉजिटिव। इसके सामने क्या साइन है पॉजिटिव, तो क्या साइन हो जाएगा नेगेटिव। करेक्ट। अब देखो 9x4 9x4, यहां ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, ये तो कट गया, करेक्ट है। हियर आई एम गेटिंग +12x³ +12x³ और नीचे क्या है +15x³, तो +12 और +15, आई एम गेटिंग हियर +27x³।
ठीक है, हियर इज माइनस 10x, हियर इज माइनस 6x स्क्वायर। सर हो गया प्रॉब्लम, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। यहां है x, यहां है x स्क्वायर, तो क्या करें, x और x स्क्वायर तो ऐड होगा नहीं, बिकॉज आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द लाइक टर्म्स। तो क्या करेंगे सर, जैसा है वैसा ही पुट कर देंगे, हम ऐड भी नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो आई विल राइट हियर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। करेक्ट। अब चलो हो गया। अब नेक्स्ट, यहां पे क्या है, एक्स क्यूब, यहां पे है एक्स स्क्वायर, मीन्स द डिवाइजर का पावर इज स्टिल लेस देन द रिमाइंडर का पावर, मतलब अभी भी मल्टीप्लाई होगा। यहां है 3x स्क्वायर, यहां है 27x क्यूब, मीन्स 3x स्क्वायर को चेंज करना है 27x क्यूब। किसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, आई विल मल्टीप्लाई विथ 9x। क्या होगा 9x से मल्टीप्लाई करने पे, 3 इंटू हाँ 3 इंटू एक्स इज 3 इंटू 9 इज 27 एंड x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल टर्म विथ प्लस 9x। करेक्ट। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 3x स्क्वायर इंटू 9x। अब इसको इसके साथ, इस पूरे टर्म को 9x के साथ, पूरा दिस फुल टर्म हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 9x। सो 3x स्क्वायर इंटू 9x, व्हाट आई विल गेट, 27x क्यूब। ठीक है, देन माइनस 5x इंटू 9x, आई विल गेट माइनस 45x स्क्वायर, x इंटू x इज x स्क्वायर। Then 2 into 9x, I will get plus 18x. Correct है? Sign change, because negative, यहां क्या है सामने प्लस, तो it will be माइनस। यहां क्या है माइनस, तो it will be प्लस। यहां क्या है प्लस, तो it will be माइनस। Okay, come on, put the values. Minus 27x क्यूब, सॉरी प्लस 27x क्यूब माइनस 27x क्यूब, ये कट गया। ठीक है, ऊपर है माइनस 6x स्क्वायर, नीचे प्लस 45x स्क्वायर। लाइक टर्म्स है माइनस प्लस, व्हाट इट विल बी 39x स्क्वायर, बिकॉज माइनस 6 प्लस 45, माइनस 10 माइनस 18, इट विल बी माइनस 28x प्लस 4। सही है। नाउ आई हैव गॉट 39x स्क्वायर, यहां पे क्या है 3x स्क्वायर, मीन्स द पावर्स आर सेम। क्या बोले, द पावर ऑफ द डिवाइजर, मतलब इसका पावर इससे छोटा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। द पावर ऑफ द डिवाइजर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द पावर ऑफ द रिमाइंडर, तब तक डिवाइड करते चलेंगे। तो अभी तक तो इक्वल्स टू है, मतलब फिर डिवाइड होगा। अब क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस 3x स्क्वायर इंटू 39x स्क्वायर। बोलो, हाउ टू कन्वर्ट 3x स्क्वायर इंटू 39x स्क्वायर। सर x स्क्वायर तो सेम है, मींस एक्स वाई लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू चेंज ओनली द नंबर्स, ओनली द कोएफिशिएंट। सो 3 हैज टू बी कन्वर्टेड टू 39, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई विथ 13। सो 3 इंटू 13 इज 39, मीन्स आई विल राइट हियर प्लस 13, मीन्स द होल टर्म has to be multiplied। यहां ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 13। ये पूरा चीज को 13 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो व्हाट आई विल गेट 3x स्क्वायर इंटू 13, आई एम गेटिंग हियर 39x स्क्वायर। करेक्ट। देन माइनस 5x प्लस 13, माइनस 5x प्लस 13, आई एम गेटिंग हियर माइनस 65x प्लस 2 प्लस 13, मल्टीप्लाई करो, आई एम गेटिंग हियर प्लस 26। नाउ साइन चेंज करो, साइन चेंज। सर दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। ये तो कट गया, बचा ये माइनस 28x प्लस 65x, दीज आर लाइक टर्म्स, प्लस माइनस होगा, तो 65 माइनस 28 इज 37x, प्लस
+4 -26, इट विल बी -22. अब ये रिमाइंडर आया, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? इस वेरिएबल का पावर कितना है? x⁴1. इसका पावर कितना है? x⁴2. मतलब नाउ द डिवाइजर हैज अ मोर पावर देन द रिमाइंडर. मतलब अब डिवाइड नहीं होगा, यहां पे तुमको रुक जाना है. व्हेन द रिमाइंडर्स पावर, इस रिमाइंडर का पावर कितना है? यहां पावर मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल. आई टोल्ड अलजेब्रा यहां सब वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट के ऊपर नहीं. तो यहां वेरिएबल क्या है? x. इसका पावर कितना है? 1. यहां वेरिएबल कितना है? x. इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2. मतलब ये डिवाइजर का पावर ज्यादा हो गया, रिमाइंडर का पावर कम हो गया. मींस दिस इज योर फाइनल, यू कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड दैट. मींस ये हो गया हमारा कोशेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर. सो दिस इज हाउ माय डिवीजन ऑफ algebraic expressions can be done. So basically algebra is divided into two parts जो बताए, algebraic operations और algebraic expressions and algebraic identities और factorization. तो algebraic expressions में था plus, minus, into and divide which we have already done. Now we will move on to algebraic identities or factorization.